Welcome to this A to Z series of RBI Grade B. In this series, we are discussing each and every aspect of RBI Grade B examination through a set of videos. आपके सारे questions in videos से answer हो जाएंगे. You need not go anywhere else. In this series, we have already discussed A for all about RBI Grade B, where we discussed about vacancies, eligibility, pattern and cutoffs. B for books में we have already covered part 1, where we discussed the books for phase 1. The part 2, where we are supposed to discuss the books for phase 2, has not been scheduled as of now, though it should have come earlier than the today's video, but due to some constraints we would be scheduling it later this week. आज के वीडियो में हम C फॉर कंपटीशन की बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी में कंपटीशन क्या है. मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि आरबीआई ग्रेड बी में क्वांटिटेटिव कंपटीशन क्या है, मतलब कितने लोग अपीयर करते हैं, कितने लोग एग्जाम देते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट those numbers. Additionally, we will also discuss about the qualitative competition, which is again a very good parameter to find out what is the exact competition. Then we will compare the competition in RBI grade B with the competition in other exams such as SBI, IBPS, PU and UPSC exams, because बहुत सारे लोगों को लगता है कि banking में competition बहुत कम है as compared to RBI grade B. So we will check that through some numbers again. And I'll also tell you that how the actual competition is not external. Rather, the actual competition lies within you. The real problem lies within you, which we are not able to tackle and therefore we are not able to secure a job. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले competition in RBI grade B, is that a myth or a reality? I would be straightforward and tell you that it's a reality. In fact, the level of competition is insane. मतलब बहुत ज़्यादा है. बट क्या ये सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी में है? सम डेज एगो आई वाज रीडिंग इन न्यूज दैट यूपी में पियन के लिए जॉब्स निकली थी एंड पीपल हु हैव डन पीएचडी they also applied for that job. So you can imagine the mismatch in the jobs available and the population we have in this country. And what makes this situation worse is the pressure of the society, which considers government job as the only पैरामीटर फॉर सक्सेस. अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है आप सक्सेसफुल है, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं है. मे बी यू कुड हैव डन बेटर इन द प्राइवेट जॉब बट यू स्टिल इंसिस्ट ऑन गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज सोसाइटी इज क्रिएटिंग अ सो मच प्रेशर ऑन यू. तो उससे कंपटीशन और बढ़ रहा है. लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल भी एक एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट दे कुड हैव डन मच बेटर समवेयर एल्स if they would have spent that much effort there. But ये reality है, we have to accept it. अब नंबर्स के टर्म्स में कंपटीशन क्या है, तो हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव कंपटीशन डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव कंपटीशन. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट क्वालिटेटिव कंपटीशन इज. If I talk about quantitative competition, we have discussed this graph earlier also. Assuming that there are 100 seats in RBI and 1 lakh aspirants are appearing, these are just numbers. Seats can vary, aspirants can vary, but this is an idea. ऐसा ही कुछ numbers रहता है. अब जो लोग फेज 1 क्लियर करेंगे और फेज 2 में जाएंगे, दे वुड बी अराउंड 1500, बिकॉज फॉर एवरी 1 सीट आरबीआई विल शॉर्टलिस्ट अराउंड 15 पीपल हु विल अपीयर इन फेज 2. तो 100 सीट्स के लिए टोटल लोग कितने शॉर्टलिस्ट होंगे? 1500 लोग. 100 सीट्स के लिए टोटल कितने शॉर्टलिस्ट होंगे? 1500. सो दैट मीन्स द सक्सेस रेट ऑफ पीपल हु विल क्लियर फेज 1 एंड विल अपीयर इन फेज 2 वुड बी 1.5%. दैट इज 1500 एप्लीकेंट्स आउट ऑफ 1 lakh total aspirants. And those who will clear phase 2 and appear in the interview, they will be around 300. For every 1 single seat, RBI calls 3 people for the interview. So for 100 seats, they will call out around 300 people, which means the success rate is 0.3% because 300 are getting selected for interview out of 1 lakh aspirants. और जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे वो 100 ही होंगे क्योंकि 100 सीट्स हैं. तो यहाँ पे सक्सेस रेट 100 आउट ऑफ 1 lakh aspirants बिकम 0.1%. तो 0.1% बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब 1% भी नहीं है, 0.1% है. इसको 1% मत सोचिएगा, दिस इज 0.1%. बट ये तो क्वांटिटेटिव कंपटीशन हो गया. इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव कंपटीशन, नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव कंपटीशन? नंबर्स के टर्म में तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, बट व्हाट आर द नंबर ऑफ पीपल जो कि एक्चुअली एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं और सीरियस हैं. जैसे कि 1 lakh aspirants में से around 70%, that is only 70,000 will appear in the examination. So rest 30,000 are just out of the race because they have not appeared in phase 1 itself. और इस 70,000 में से भी how many are serious aspirants? Serious मतलब जो लोग अच्छे से सिलेबस को समझ रहे हैं,
जो लोग अच्छे से सिलेबस को कवर कर रहे हैं, those who are revising properly, those who are solving lot of questions and solving lot of mock test, ऐसे कितने लोग हैं? अब देखिए, कट ऑफ 60 से 70 के बीच में जाता है, मतलब 1500 लोगों के 60 से 70 के बीच में नंबर आते हैं, इससे ज़्यादा आते हैं। आपके चलो कम आए, वो अलग बात है, बट अगर मैं इस 60 के नंबर को 30 तक ले जाऊं कि भैया जिनके 30 नंबर आएंगे वो सारे फेज 2 में बैठेंगे, देन ऑल्सो द नंबर ऑफ पीपल हु वुड बी एबल टू स्कोर 30 और मोर, वो 10,000 ही होते हैं, बाकी लोगों के बहुत कम नंबर होते हैं। सो आई वुड से दैट ठीक है, आपका दिन बुरा था, कुछ लोगों का हो सकता है, बट इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एंड यू आर नॉट एबल टू स्कोर 30, यू आर स्कोरिंग लेस देन 30 आउट ऑफ 200, तो आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं है मेरे हिसाब से, आपने अच्छे से तैयारी ही नहीं की है फॉर वॉट एवर रीजन। तो मेरे हिसाब से ये 10,000 लोग हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो आपका कंपटीशन 1 लाख 2 लाख के साथ नहीं है, योर कंपटीशन इज विद 10,000, आउट ऑफ दिस 100 पीपल विल गेट सिलेक्टेड। तो सक्सेस रेट 0.1% नहीं 1% हो जाएगा, हालांकि 1% भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट हैज़ सडनली इंक्रीज 10 फोल्ड, 0.1 से सीधा 1% हो गया, विच इज़ अ गुड फिगर। इससे कम कंपटीशन तो कहीं मिलेगा आपको। और अगर आपके दिमाग में ये है कि आरबीआई में जो मैं 0.1% की बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव कंपटीशन की, जो हमने यहाँ बात की, ठीक है, कई लोगों को लगता है दिस नंबर इज रियली स्मॉल इन एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। इज इट? लेट्स सी सम नंबर्स। एसबीआई पीओ एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 2000 सीट्स हैं या आती हैं, ठीक है, ये फिगर्स रफ हैं, कई बार 2500 आ सकती हैं, 2800 आ सकती हैं। आई हैव टेकन 2000 एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो अपीयर करते हैं इज अराउंड 10 to 12 lakhs. So the competition here is also 0.2%. ये फिगर्स में थोड़ी बहुत चलो गड़बड़ी भी है तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 नहीं 0.3% हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं है कि ये 5-10% सक्सेस रेट हो जाएगा। आईबीपीएस पीओ में अराउंड 4000 सीट्स, एप्लीकेंट्स 8 लाख, सक्सेस रेट 0.5%। यूपीएससी अराउंड 800 to 1000 seats, 8 lakh to 10 lakh aspirant, 0.1%. So even in these exams you can clearly see that success rate is not 1% or 2%. ऐसा नहीं है. It is 0.2%, 0.5%, 0.1%. It is in decimals, less than 1. So competition हर जगह है. सिर्फ देखने में लगता है कि यहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं तो probability ज़्यादा होगी, but the number of applicants also increase manyfold. So it's just like demand and supply situation. सीट ज़्यादा हैं तो उतने ही लोग अपीयर करने लग जाते हैं because everybody feels कि यहाँ पे मेरा चांस बन जाएगा, बाकी एग्जाम में तो सीट्स कम है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है, सर ठीक है नंबर्स के टर्म में कंपटीशन समझ गए, बट क्या वो लोग जिनका फाइनेंस या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या यूपीएससी बैकग्राउंड है, विल नॉट दे बी गेटिंग एन एज एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट आई फील अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे, फेज 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करंट अफेयर्स है, फेज 2 में ईएसआई एफएम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है. दिस एग्जाम हैज समथिंग फॉर एवरीबॉडी. से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग और यू आर इंजीनियर, यू हैव क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इन योर फेज 1 एग्जामिनेशन, जहां पे आपको एज मिलेगा. अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, then quant reasoning English is something which you would have already done. If you are preparing for UPSC, then economics and answer writing will become easier for you. If you're already working in bank, then maybe finance will become easier for you. If you've already done an MBA, then maybe management will become easy for you. So this exam has something for everyone. मुझे नहीं लगता कि किसी एक बैकग्राउंड के पर्सन को बहुत ज़्यादा एज मिलता है. The syllabus is very generic, though there are subjects like ESI and finance, but if you see the syllabus and the type of questions there, it doesn't require any specialization. फैक्चुअल पेपर आता है, थोड़ा सा स्क्यूड आ सकता है, बट वो सबके लिए होगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए. एंड एवरी ईयर इफ यू सी देयर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड फ्रॉम बैकग्राउंड सच एज होटल मैनेजमेंट, एग्री, pharma, they have also been clearing this exam if you see the past year results. तो background से ज़्यादा I would say it is your effort which would count. Background might help you initially to get kickstart, but अगर आप background से नहीं भी हैं, 1-2 महीने में एक थोड़ा सा बेस बना लेंगे, you will almost reach at the same level where others are with respect to this examination. अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे एस्पिरेंट के दिमाग में आ रहा होगा ये है कि सर चलो मान लिया बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, कंपटीशन भी 1 लाख नहीं 10,000 लोगों से है,
बट उन 10,000 लोगों में से भी हाउ डू आई इंश्योर दैट आई गेट वन सीट? क्योंकि सीट तो आधे नंबर से भी रह सकती है, सीट तो बिल्कुल पॉइंट से भी रह सकती है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो देर इज नो गारंटी दैट हाउ मच हार्ड यू मे प्रिपेयर और हाउ मच best sources you have, the best mentors you have, it will never give a guarantee that you will clear the examination. It would always just increase the probability. And we have been talking about the external competition कि इतने लोग appear करते हैं, background matter करता है नहीं करता है. But I think the real competition is not the external competition, it is the internal competition. The competition that is within you. That voice inside you that is telling you again and again कि तुम्हारा नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है. That is actually telling you to quit. और जितना आप इस आवाज को सुनेंगे उतना डिमोटिवेटेड होंगे, उतना आपका प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगा. फिर बहुत लोग तैयारी करते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते हैं. दे कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. आज तो दोस्त की शादी है, आज तो दिवाली के गिफ्ट्स लेने हैं, आज तो मैं सो जाता हूं, कल उठूंगा. दे कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड in the end they realize that it is too late now to start their preparation, and even if they do, they're not able to make the cut. And sometimes even if you start studying daily, you are not being productive because there are too many distractions. ये जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और उसमें फेसबुक, यूट्यूब है और उसमें जो रील्स हैं और शॉर्ट्स हैं, उसमें हम इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम करें क्या. वी गेट टू मच एनग्रॉस्ड इनटू दैट. बस शुरू हो गया तो 1 घंटा 1.5 घंटा एंड वी आर नॉट एबल टू लीव दैट बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बस जो करके मजा आ रहा है वो करते रहो. एंड देन वी फील दैट गिल्ट, और वो गिल्ट और हम पे भारी हो जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन कर देता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से द रियल कॉम्पिटिशन दैट यू नीड टू टैकल इज द इंटेंट. इंटेंट मतलब रिजॉल्व. हाउ बैडली डू यू वांट टू गेट इनटू आरबीआई, दैट वुड डिसाइड दैट आप ऊपर वाली 3 प्रॉब्लम हैंडल कर भी पाओगे या नहीं पाओगे. एवरी डे यू वुड हैव वन एक्सक्यूज और द अदर विच वुड प्रिवेंट यू फ्रॉम स्टडिंग. बट आप क्या उस एक्सक्यूज को इग्नोर कर आगे चलना चाहते हो या नहीं, दैट विल डिसाइड वेदर यू विल विन ओवर द रियल कॉम्पिटिशन और नॉट. आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स who was having a severe back pain. बहुत ज़्यादा बैक पेन था उनको. मैंने उनको बोला रेस्ट करो, बट वो उन्होंने बोला कि सर मैं रेस्ट करने का तो सोच ही नहीं सकती. इनफैक्ट आई एम नॉट इवन टेकिंग पेन किलर्स बिकॉज पेन किलर्स लेने के बाद आई फील स्लीपी एंड देन आई एम नॉट एबल टू स्टडी. सो आई एम जस्ट बेयरिंग द पेन विदाउट टेकिंग पेन किलर्स, क्योंकि मेरा रिजॉल्व है कि मुझे आरबीआई क्लियर करना है और अब सिर्फ 2 महीने बचे थे. मैं अब ये पेन बियर करूंगी बट आई विल गिव माई बेस्ट ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो. तो इस टाइप का इंटेंट होगा ना, तभी ऊपर वाली 3 प्रॉब्लम्स आप रिजॉल्व कर पाओगे, नहीं तो इन्हीं में खोए रहोगे. एंड बाय द टाइम यू रियलाइज कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, इट वुड बी टू लेट. बिकॉज कंपटीशन तो पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ोगे तो वो नहीं रुकेगा. वो पढ़ रहा है, वो आपसे आगे निकल रहा है डे बाय डे, आर बाय आर, सेकेंड बाय सेकेंड. आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी गाड़ी ज़रूर चला सकते हो. तो इस पर सोचो, काम करो. कंपटीशन के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो. And this is the guidebook which I want to show you if you are starting your preparation for RBI Grade B Manager. This guidebook is an excellent source to start with. इसमें आपको बहुत सारी information मिल जाएगी with respect to RBI, promotions, department, hierarchies, salary. और 3 बेस्ट चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको पूरी बुक लिस्ट मिल जाएगी आरबीआई की, ठीक है. और इसमें आरबीआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिकोडेड सिलेबस है एग्जैक्ट, जो सिलेबस नोटिफिकेशन में भी नहीं है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा. तो इस गाइड बुक को आप आज ही डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री. द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. जल्दी से डाउनलोड करके पढ़ो, बहुत सुंदर है, छोटी सी है, आई थिंक 2-3 घंटे में पढ़ी जाएगी. एंड यू विल गेट टू नो लॉट अबाउट आरबीआई एंड यू विल ऑल्सो गेट द नेक्स्ट डोज ऑफ मोटिवेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. And these are our courses for RBI Grade B 2025. We have a gold pack and a silver pack. Gold pack is for Phase 1, Phase 2 interview, complete solution. Silver pack is mainly for Phase 2 and interview. But Phase 1 current affairs would also be available in the silver pack because they overlap with Phase 2. But quant reasoning English of Phase 1 will not be available in the silver pack. And in case you want to check our demo material, there is a link in the description of this video. आप उस लिंक पर क्लिक करें, हमारा डेमो मटेरियल डाउनलोड करें, आराम से देखिए एंड रियलाइज दैट वेदर दैट इज जस्ट it's about quality and comprehensiveness. ठीक है, अगर आपको satisfying लगे then only you can be ready to become part of the community at EduTap. So take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.